الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اس کی نافرمانیوں نے اس کو گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے مسلمانوں سے مخاطب تھا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا تھا مسلمانوں کو کہ تم چاہتے ہو کہ یہ بھی تمہاری طرح ہدایت پر آ جائیں، تو ہرگز بھی ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے ہی مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے ہیں تو اس کی برائیوں نے، اس کی نافرمانیوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ ہمارے اوپر جو تنگ دستی، جو پریشانی آتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ ہماری خود کی اپنے اعمالوں کی وجہ سے، ہماری خود کی نافرمانی کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں پریشانی آتی ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیا وہ جنتی ہیں اور وہ وہاں جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں تو صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نیک عمل بھی کریں، کیونکہ صرف ایمان لانے سے کام نہیں بنے گا، کیونکہ ایمان لانے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہی دیا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ اور پھر نیک کام کرو۔ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں نیک کام کرنا بھی ضروری ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے بھی تمہارے پاس نیک اعمال ہونے چاہیے، خالی صرف ایمان لانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور جو ایمان لے کر آتا ہے تو وہ ایمان انہی باتوں پہ لے کر آتا ہے جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ وہ اس کو کرے گا، نہیں تو پھر وہ ایمان بھی لے کر نہیں آئے گا اگر وہ اس عہد کو پورا نہیں کرتا تو۔ اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا ہے وہاں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر بھی کیا ہے، تاکہ وہ اپنے بندوں کو یہ دونوں طرح سے تربیت کر کے بتاتا ہے کہ اگر تم برے کام کرتے ہو تو جہنم میں جاؤ گے اور اچھے کام کرتے ہو تو جنت میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے، نیکی اور بدی کا ذکر دونوں کا ساتھ ساتھ کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہمیں جب اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے تو وہ بھی ایسی کرنی چاہیے کہ جب ہم اپنے بچوں کو کسی برے کام سے روکتے ہیں تو اس کو بتانا چاہیے کہ اس برے کام کا نتیجہ کیا ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں کیا سزا ملے گی، اور یہ اچھا کام ہے تمہیں یہ کرنا چاہیے، اس کے بدلے میں تمہیں اس کے اجر کیا ملے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ہمیں اسی طرح سے چلنا بھی چاہیے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہیں کرو گے، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، لوگوں سے اچھی باتیں کہو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے منہ پھیر لیا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کا جو حکم دیا ہے یہ صرف امت مسلمہ پہ نہیں بلکہ بنی اسرائیلیوں کے لیے بھی تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، اور جب وہ عمر دراز ہو جائیں گے تو وہ اگر تمہیں کچھ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں یا چھیڑ چھڑاہٹ میں کچھ کہتے ہیں تو تم پلٹ کے ان کو اف بھی نہیں کہو گے، ان کی تمہیں اتباع کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، سوائے اس کے کہ وہ شرک کرنے کا حکم دے، ورنہ ہمیں ماں باپ کے آگے کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم جس حالت میں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، ماں کا حکم ہے تو فوراً اس کو پورا کرنا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی حدیث بیان کرتا ہوں چلوں آپ لوگوں کو کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک وقت میں مجھے میری ماں آواز دیتی ہے اور ایک وقت میں مجھے میرا باپ آواز دیتا ہے، تو اسی وقت میں دونوں نے مجھے آواز دی، میں کس کی جانب جاؤں، کس کی بات مانوں، کس کی بات پہلے سنوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں کی بات سنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اگر آواز دیں پھر کیا کروں؟ کہا ماں کی طرف۔ پھر پوچھا کہ پھر آواز دیں دونوں پھر کیا کروں؟ کہا پھر ماں کی طرف۔
फिर पूछा साहबी ने कि फिर दोनों आवाज़ दें, फिर क्या करूं? तो कहा अब बाप की तरफ। 3 दर्जा माँ का है और 1 दर्जा बाप का है। लेकिन यहाँ तो दर्जाबंदी तो चलो है, माँ का रुतबा ज़्यादा है, लेकिन हम आज के दौर में देखते हैं कि हमारे जो है आज के जनरेशन, वो ना बाप को किसी लेवल पे रख रही है, ना माँ को किसी लेवल पे रख रही है। और इसी वजह से हम लोग पस्ती की तरफ जा रहे हैं। और हम मुसलमान जो आज दुनिया में रुसवा हो रहे हैं, उन असबाब में एक सबब ये भी है कि हमने अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करना छोड़ दी है, उनका इज्जत और एहतराम करना छोड़ दिया है, इसलिए हम लोग पस्ती की तरफ जा रहे हैं। अभी भी अगर हम अल्लाह ताला से दुआ करें और अपने आप को मजबूत करके शैतान को मात देकर अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करने पर आएँ और अपने आप को मजबूत करें, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ अपने आप को ये समझना है कि हम कुछ भी नहीं है। हमारी जो हैसियत है, हमारे अंदर जो ताकत है, हम आज जो भी कुछ रखते हैं अपने पास, वो चाहे माल हो, वो चाहे इज्जत हो, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो हमारी दुनियावी सामान हो, ये सब हमारे माँ बाप की बदौलत है, ये सब उन्हीं की देन है। तो जब अगर ये हम अपने अंदर सोच लेंगे, तो हमें खुद ब खुद फर्माबरदारी करना आ जाएगी अपने माँ बाप की। लेकिन शैतान को मात देना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर सबसे ताकतवर इंसान है, अगर वो चाहे तो ऐसा कर भी सकता है। और जब हमने तुमसे वादा लिया कि आपस में खून ना बहाना और आपस वालों को जिला वतन ना करना, तुमने इकरार किया और तुम इसके शाहिद बने, गवाह बने। अल्लाह ताला यहाँ से बनी इसराइलियों से मुखातिब है, और वो बनी इसराइलियों को कह रहे हैं कि जब हमने तुमसे वादा लिया था इस बात का कि तुम आपस में एक दूसरे को कत्ल नहीं करोगे और आपस में एक दूसरे को जिला वतन यानी कि मुल्क से बाहर नहीं निकालोगे, और तुमने इस वादे का इकरार किया था और तुम उसके गवाह भी बने थे, लेकिन फिर भी तुमने आपस में कत्ल किया, एक दूसरे को जिला वतन किया, गुनाह और ज्यादती के कामों में इनके खिलाफ तरफदारी की, यानी कि जहां उन्होंने कहीं गलतियां कोताहियां की हैं, तो उनकी इस्लाह करने के बजाय उनकी तरफदारी की है। जैसा कि हमारा कोई भाई कोई चोरी करके आता है और हमें वो पता चलती है बात, तो हम उसको समझाने के बजाय, उसको डांट डपट करने के बजाय, बल्कि उसकी तरफदारी करें, उसकी हिमायत करें, तो वो बनी इसराइल ने ये हरकतें करना शुरू कर दी थी। और जब कैदी तुम्हारे पास आए तो इनके बदले में तुमने इनसे फिदिये लिए जो कि तुम्हारे ऊपर हराम था। तुम अल्लाह ताला के बास अहकाम पर ईमान रखते हो और बास के साथ कुफ्र करते हो। तुम में से जो भी ऐसा करे, इसकी सजा क्या है इसके सिवा कि दुनिया में रुसवाई हो और क़यामत के दिन अल्लाह ताला की सख्त मार पड़े। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बाखबर है। अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि तुमने खुद से ही अपने ऊपर जो है तुमने ये कर लिया है कि जिस काम को चाहते हो, समझते हो कि हाँ ये सही है, ये जायज़ है, इसको करना चाहिए, और खुद से तुम कुछ काम को टाल देते हो, छोड़ देते हो, नाफरमानी करते हो। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ, जैसे कि हमने ये समझ लिया कि शराब पीना गुनाह है और हम नहीं भी पीते, उससे बहुत दूर रखते हैं, इसको हम बड़ा गुनाह मानते हैं। लेकिन नमाज को छोड़कर बिल्कुल आसानी से इत्मीनान के साथ अपना खाते पीते हैं, अपने दुनियावी मामलात में लगे रहते हैं, जैसे कि ये कोई गुनाह ही नहीं है। बिल्कुल यही बनी इसराइलियों का हाल था। जो बड़ा गुनाह है शराब, हाँ यार वो बिल्कुल दूर रहना, उसको हाथ भी नहीं लगाना, उसके बारे में जिक्र भी नहीं करना, क्योंकि वो गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरह नमाज को तर्क करना जानबूझ के, ये भी बड़ा गुनाह है, लेकिन हम उसके बारे में आराम से इत्मीनान से बैठे हुए हैं, उसको गुनाह समझते नहीं है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है हरगिज़ भी। जो गुनाह है वो सारे गुनाह हैं, और जिनका तुम्हें अहकाम दिए हैं वो अहकाम को तुम्हें पूरा करने हैं। इसी तरह बिल्कुल कि जैसे शराब को छोड़ना ठीक है, छोड़ने का हुक्म है, तुमने छोड़ दी। नमाज पढ़ने का हुक्म है तो वो पढ़नी भी है ना, सिर्फ शराब छोड़ने का हुक्म थोड़ी आता है, नमाज पढ़ने का भी तो हुक्म आया ना, तो वो भी करना है। तो हम जो है सिर्फ अपनी आसानी के लिए जो है वो देखते हैं कि हमें कौन से अहकाम को पूरा करना है और कौन से नहीं। तो ऐसे नहीं चलता है, ऐसे मामला नहीं चलते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया
की जिंदगी को आखिरत के बदले खरीद लिया है। इनके ना तो अजाब हल्के होंगे और ना इनकी मदद की जाएगी। ये सिर्फ बनी इसराइलियों के लिए नहीं है, ये आयत, ये हुक्म हम मुसलमानों के लिए भी है कि हमारे ऊपर जो है ये अजाब हल्का नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैं मिसाल देता हुआ चल रहा हूँ कि हमने कुछ गुनाह तो छोड़ दिए गुनाह समझ के, लेकिन कुछ जो अहकाम है अल्लाह ताला के वो कर भी नहीं रहे, उनको बिल्कुल हल्का और छोटा जानकर। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है हरगिज़ भी, ये जो है ना तुमने दुनिया को खरीद लिया है। अपनी नमाज क्यों छोड़ देते हैं? दुनियावी कामों के लिए, अपनी दुनियावी खेल और आसाइशों के लिए, तो नमाज को तर्क कर दिया। तो तुम फिर क्या समझते हो कि तुमने जो है ये आखिरत के बदले जो दुनिया खरीद ली है, तो तुम्हारे अज़ाब थोड़ी हल्के होंगे, और कोई क़यामत के दिन ऐसा होगा भी नहीं जो तुम्हारी मदद करेगा इस सिलसिले में। यानी कि देखो यहाँ बात वाज़ेह हो गई कि अगर घर का बच्चा कोई हाफिज़ कुरान है तो वो बख्शिश नहीं करवाएगा 10 बंदों को, अपने घर के बंदों को ले जाए अगर वो घर वाले बेनमाजी हैं तो। हमने मूसा को किताब दी और इनके पीछे रसूल भेजे। हमने ईसा इब्ने मरियम को रोशन दलीलें दी और रूहुल कुद्दूस से इनकी तायद करवाई। लेकिन जब कभी तुम्हारे पास रसूल वो चीज़ें लाए जो तुम्हारी तबीयतों के ख़िलाफ़ थी तो तुमने झट से तकब्बुर किया, बस बाज़ को झुटला दिया और बाज़ को कत्ल भी कर डाला। अल्लाह ताला बनी इसराइल से कह रहा है कि हमने जो मूसा को किताब दी थी तौरात, ठीक है, इसके तुम गवाह हो। फिर हज़रत ईसा इब्ने मरियम को रोशन दलीलें दी थी, यानी कि उनको इंजील दी थी, उनके पास जो मौज़ात थे वो मौज़ा उनको दिया था। हम जैसे आगे चलेंगे तो उन मौज़ात से हम वाकिफ़ होंगे, वो मौज़ा क्या थे, और बहुत सारी रोशन दलीलें दी थी। एक दलील ये थी कि रूहुल कुद्दूस यानी कि जिब्रील अमीन के ज़रिए उनको इल्म अता किया था, और जब वो छोटे थे, एक दिन के थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अहमद अल्लाह के आखिरी रसूल होंगे और मेरी माँ जो है वो पाक दामन है। ये रोशन दलीलें थी जिनको तुमने सब ने झुटला दिया। और जब तुम्हारे पास कभी भी ऐसी चीज़ आई जो तुम्हारी तबीयत के खिलाफ थी, मिजाज से खिलाफ थी, तो तुमने फ़ौरन से तकब्बुर किया, झुटला दिया उस बात को फ़ौरन से। और फिर तुमने नबियों को जो भेजा अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद पे दर पे जो नबी आए उनको तुमने बास को तो झुटलाया और बास को कत्ल भी कर डाला। नबियों को 1,24,000 कमोबेश जो अम्बिया कराम है, अल्लाह ताला ने सबका जिक्र नहीं किया, लेकिन जो बास को जो कत्ल किया वो इन्हीं अम्बिया कराम में से होंगे। ये कहते हैं कि हमारे दिल गिलाफ वाले हैं, नहीं नहीं, बल्कि इनके कुफर की वजह से इन्हें अल्लाह ताला ने मलून कर दिया है, इनका ईमान बहुत ही थोड़ा है। बनी इसराइल कहते हैं कि ये जो तुम हमें बातें बताते हो ना दीन की, जो भी अम्बिया कराम गुजरे, तो वो बनी इसराइल कहते हैं कि ये जो है ना तुम गुनाह की बातें बताते हो, तुम गुनाह करते हो, हम अपने दिन पर सही हैं, और हमारे दिल जो है ना इस बात को इसलिए नहीं मानते कि हमारे दिल पर गिलाफ चढ़ा हुआ है, हम कट्टर हैं, मजबूत हैं अपने दिन पर, हमारे दिल पर कुछ असर नहीं होने वाला। तो अल्लाह ताला कह रहा है नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने पूरी सख्ती के साथ मोहर लगा के कहा कि नहीं नहीं, बल्कि तुम खुद कुफर में मुब्तला हो, और तुम्हारा कुफर और तुम्हारा कट्टर जो है ना ये इतना बुरा है अल्लाह ताला की नज़र में कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मलून कर दिया, तुम्हें मलून करार कर दिया। मलून से मतलब शैतान, जैसे इब्लीस, जैसे अल्लाह ताला ने उसकी शक्ल को बिगाड़ दिया और उसको धुतकार दिया, उससे अल्लाह ताला ने मुशाफिर देखकर कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मलून कर दिया तुम्हारे इस कट्टर होने की वजह से, तुम्हारी सख्ती की वजह से। जो तुम कहते हो ना कि हमारे दिल तो खिलाफ हैं, हमारे ऊपर कुछ असर नहीं होने वाला क्योंकि हम अपनी जगह पर सही हैं, तो तुम गलत हो, ऐसा नहीं है। तुम्हारा ईमान बिल्कुल थोड़ा सा है जिसके बारे में तुम जानते भी नहीं हो। ये सब अल्लाह ताला बनी इसराइल से मुखातिब होकर कह रहा है। ये नाजिल तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होती है कुरान पाक की आयत, लेकिन मुखातिब बनी इसराइल से है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह से अपनी इस नशिस्त को जारी रखने की हमें तौफीक अता फरमाए।